अगर मैं बात करूँ एक क्रिटिसिज्म की भी, जहाँ पे आपने मेरे को बड़ा अच्छे से समझाया कि हम बारबारिक इस्लामिक इन्वेडर देखें या ना देखें, लेकिन वीएफएक्स की बात करूँ तो मैनी पीपल से दैट ब्रह्मास्त्र, द मूवी बाय रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट एंड करण जौहर प्रोडक्शंस, has sort of raised the bar for the VFX. I've heard, and I'm a huge fan of Ayan's work. I haven't had a chance to see Brahmastra yet because I've been busy working on this film. Sorry, I cut your question. But do people expect the same from VFX? Because from Adipurush, because they say that your VFX in that 95-second trailer do not look that mesmerizing. Is that criticism valid, or you sort of counter that criticism? That every criticism is valid, correct? Every criticism that everybody and anybody who says, and I'll be a fool if I don't hear the criticism, because otherwise you can't grow. Well, that's very humble of you. Correct. That's a reality. It's a reality. Talking about Brahmastra, I haven't had the pleasure to see the film yet, but the film has done very good ticket sales, and it has done very good at the box office. And if you look at Ayan's films in the past, he's done really good work as a very accomplished filmmaker. Obviously, there is a good reason that the film has done such a good number, because they have done something which is absolutely correct. And in recent future, I would like to go and see the film, and I'm pretty sure the opinion will not change. It is going to be a good thing. Now, comparing films and comparing visual effects is not really a good thought. Absolutely. I would like to believe that yes, there are some areas where we can improve, and we are working on it, because for every filmmaker or for any captain, it's not just the filmmaker, even in case of any leadership, you want to keep fighting till the end, right? Till the last moment you will keep fighting, and when that till the last breath, till the last minute, you will keep fighting to make your product better. Right. So it will be only unfair for me to say, or incorrect or illogical for me to say, that it does not require improvement. It does require improvement at so many places, but at so many places, I think the visual effects team has done phenomenal work, correct? And there are so many places where they have done highly accomplished work. We should come and experience it on a bigger screen, right, to enjoy it to the fullest. Many people also believe, on social media there is a talk, I'm not too sure whether this is true or not, that you have made some corrections. If I may ask you, you may feel free to answer that or reply, because I've said it before, that you are a very honest yes, filmmaker. Yes. That has Raj Tilak been added to Raman's character, or there is a change in Hanumanji as well, that instead of some leather strap there has been a change to that? So here's Raman correction, Vanar Sena correction, any of Tripun, these, any of this, Pushpak Viman, any of these things. There is no Pushpak in the trailer. We will come to that. Any of these corrections, and as I've always said, that this is a mission to us. This is not a film, correct? And if at all we can call this a film, this is everybody's film, correct? तो correction हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रभु राम का चरित्र जो आने वाली पीढ़ी है, युवाओं तक हम पहुंचा सके, और हमारे देश के युवा ही नहीं, पूरे विश्व में सब जगह हम प्रभु राम का चरित्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग इसमें हमको चीजें बोल रहे हैं, उस सब की हम एक नोट बना रहे हैं, हम सब चीजें लिख रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देख रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं किसी को निराश नहीं करूँगा। जो लुक है, जो वर्ल्ड क्रिएशन जिसे लोग कह रहे हैं, ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड आज के यंगस्टर्स को, आज की युवाओं को उनके हिसाब से दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो वर्ल्ड है, ये जो लुक है, जो आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो हैरी पॉटर देख रहे हैं, डीसी की फिल्में देख रहे हैं, मार्वल की फिल्में देख रहे हैं, उन युवाओं तक पहुंचने के लिए ये लुक जो है, फिल्म का लुक, द कलर पैलेट, द वर्ल्ड, द ट्रीज, द माउंटेन्स, ये सब उनको उनकी भाषा में सिखाने के लिए, उनको उनकी भाषा में पहुंचने के लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये करते वक्त रामायण का जो सोल है, वो सोल 100% इंटैक्ट है। आपने दो कैरेक्टर्स की बात करी, ऑफ कोर्स मैं सैफ पे अटका रह गया, लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है कि मेरे जहन में भी है और लोगों के भी, एक साउथ इंडियन एक्टर को ही आपने क्यों लॉर्ड राम के कैरेक्टर के लिए लिया, प्रभास को? मैं समझता हूँ कि बड़े आपको नहीं बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि आंखें उनकी बहुत बड़े दबंग भी दिख रहे हैं, जिस तरीके से वध किया रावण का मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हुए भी, और जिस तरीके से सीता हरण के बाद में सीता को लेके आए, लड़के लेके आए, एक दिखाया कि एक हस्बैंड की ड्यूटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मैं ये सिर्फ वैसे आपसे जानना चाह रहा था कि सिलेक्शन कैसे हुई प्रभास की, और
कृति सैनन की, दोनों की अगर बात करूं तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं, मतलब मैंने पहले भी कहा कि अगर प्रभास नहीं होते, इफ इट वाज नॉट प्रभास, आई विल नॉट डू द फिल्म. इट हैड टू बी प्रभास, ऐसा क्यों? because it was so important for me to see. As I've said earlier, it is impossible to reach that level. It is not possible in our given situation, in our given this thing. He is a person who has a extremely pure heart, and your eyes are only a reflection of your heart, correct? Even to play that pious role, even to play something, वो ऊंचाई तक, वो उसको सिर्फ उसको अगर पेश भी करना है ना, तो वो पेश करने के लिए उस टाइप की प्योरिटी की ज़रूरत है, आपके आचरण में, आपके आपके बर्ताव में, आपके आपकी दिस. तो प्रभास इज समबडी हु, आई मीन, यू कैन सी इट, राइट? यू कैन सी इट. प्रभास इज समवन who can help me shape Maryada Purushottam in a particular way. And when it comes to Ma Sita, Janaki's character, Ma, I wanted somebody who's very pious looking. हमारे लिए तो माता है, तो उस तरह से पेश करने के लिए I needed somebody who's very, very Indian, very जैसे कहते हैं ना कि एक माता का रूप जिसमें दिखे जी. वो उस तरह का एक ये चाहिए था. और ऑब्वियसली एक्टर तो कृति बहुत ही अच्छी है, बड़ी टैलेंटेड एक्टर है, बहुत टैलेंटेड एक्टर है. हम मिमी जैसी फिल्में उन्होंने की है, उनके लिए उनको बहुत अवार्ड्स भी मिले उनके काम के लिए. तो इसलिए इन दोनों का मैंने दोनों को अप्रोच किया. इनफैक्ट दोनों को मैं पहली बार मिला ये रोल लेके. क्या बात है? इसके पहले मैं उनसे कोविड के दौर में प्रभास को ड्यूरिंग अनलॉक में मिला. ड्यूरिंग प्रभास आई मेट इन अनलॉक, एंड कृति को ऑब्वियसली वी मेट आफ्टर. सो दोनों को बहुत ही रिसेंटली, दोनों एक ही बारी में कन्विंस हो गए कि नहीं करनी है मूवी. हाँ, दोनों को. प्रभास के साथ मैंने फ़ोन पे बात की थी. मैंने उनसे कहा था कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ. उन्होंने तुरंत मुझे SMS व्हाट्सएप रिप्लाई किया कि व्हाट इज़ इट, आई वुड लाइक टू टॉक. सो मैंने उनको फ़ोन किया, और जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने कहा कि ऐसा मैं फ़िल्म कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे आपसे बात करनी है. तो उन्होंने पूछा मेरे को कौन से रोल के लिए तू पूछ रहा है, विच रोल डू यू वांट मी टू प्ले? एंड आई सेड ऑब्वियसली, आई मीन, आई वांट यू टू प्ले राघव. हम राघव कह रहे हैं, करेक्ट, रघुकुल का वंशज, हेंस राघव. तो मैं आपको राघव के रोल के लिए तो ही इज लाइक आदिपुरुष, मैं आई विल डू आदिपुरुष. सो आई सेड यस. ही सेड आई वुड लव टू मीट यू, कैन I'll come to Mumbai to meet you. बट वो अनलॉक के तौर पे हमारे यहाँ पे थोड़ा मुंबई में बहुत स्ट्रिक्ट था. तो मैंने कहा आप बताइए, मैं आ जाता हूँ. और मैं हैदराबाद चला गया था, और बस पहली सीटिंग में मैंने उनको फिल्म पूरी नरेट कर दी. और जैसे ही हो गया उन्होंने बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ. आपने कोविड का जिक्र किया, वो फिर दौर था कैसा? क्योंकि बड़ा एक सेकेंड वेव भी थी, डरावनी वेव भी थी. आप लोगों ने हिम्मत कैसे दिखाई भगवान राम की? बहुत, वो तो उनकी इच्छा है, हम कुछ नहीं कर सकते. देखो, मैं कुछ दूसरी फिल्म कर रहा था इसके पहले. जब हमारी तानाजी खत्म हो गई उसके बाद मैं दूसरी फिल्म कर रहा था. ठीक है. दूसरी फिल्म के मैं रेकी को जाने वाला था और लॉकडाउन हो गया. ठीक है. लॉकडाउन हो गया, मैं घर पे बैठ गया. हम सब घर पे बैठ गए. 2020 वाला लॉकडाउन है, 21 में जो आया है? 2020 वाला, पहला वाला, 23 मार्च वाला जो जनता कर्फ्यू हुआ, और उसके बाद याद है मुझे, जब लॉकडाउन हम चले गए. ठीक है. तो मैं तो जाने वाला था रेकी करने के लिए दूसरी कोई फिल्म की, बट ये उन्हीं की इच्छा थी. प्रभास मुझे कहता है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस रोल. आई सेड, मेरे को क्यों थैंक यू बोल रहा है, मेरे को भी किसी ने चुना है. हम सबको, एज अ कैप्टन ऑफ दिस ग्रुप, ऑफ दिस टीम, आई कैन ऑलवेज से दैट आई और ऑल ऑफ अस फील एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट दैट वीव हैड दिस चांस टू मेक अ फिल्म लाइक दिस. वीव हैड दिस चांस टू मेक, to be a part of this film, correct? Because I've always said that if this is a film, this is everybody's film. Correct. So we've had this chance, and रामायण और रामलीला ये बहुत लंबा सफर है. ये सालों से चलते आ रहा है और सालों तक चलते रहेगा. इसमें रामलीला होती रही है, इसमें अलग अलग फॉर्म्स में होते रहे हैं. हमारे यहाँ पे फोक में हुआ है, हमारे यहाँ पे थिएटर में हुआ है, टेलीविजन पे हुआ है. हिंदी फिल्म नहीं हुई, बट अलग अलग मीडियम्स में रामायण तो चलते आ रहा है, और सबसे बड़ा मीडियम रामलीला है. उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. और ये बस जो है ना, ये बस जा रही है. ये स्टॉप पे हम चढ़ गए, करेक्ट. हम कुछ समय इस पे सफर करेंगे जी. हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, और फिर ये सफर से हम उतर जाएंगे. पर ये बस जो है, ये कारवां जो है, ये काफिला जो है, ये जो जर्नी जो है,
ये जो मिशन ऑफ रामायण है, राइट, रामलीला है, ये सालों तक चलते जाएगा, ये करेक्ट, चलते ही रहेगा, चलना तो भी चाहिए, ये चलेगा, ये चलना भी चाहिए, ये तो च- रुकना ही ये नहीं च- चाहिए, ये ये तो कोई चीज़ चलेगा, जैसे थमने की जरूरत ही नहीं है, ये और हम नहीं, ये रुकेगा ही नहीं। रुकना ही नहीं चाहिए। तो सैलाब है ऐसा कि मुझे लगता है कि जिस जिस युग में आप बना रहे हैं ये मूवी, जैसे आपने मिलेनियल्स का भी जिक्र किया, अगर हम उन तक ये मैसेज ना पहुंचाएं तो शायद कौन पहचानेगा कौन। Absolutely. This is precisely what I'm trying to say. That the reason to make Adipurush on celluloid करेक्ट, is to reach the younger audience. एब्सोल्युटली, The reason to make Adipurush onto celluloid in this presentation, करेक्ट, correct? I use the word carefully. Presentation is to reach the global audience करेक्ट। and tell them कि ये हमारे भारत का इतिहास है. अगर क्रिटिसिज्म की मैं बात करूं, आपने कृति की बात करी, दो बड़े टैलेंटेड एक्टर्स आपने यंग और एक ओल्ड भी पकड़े। कृति की अगर बात करी जाए, यू हैव मेड कृति सैनन हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ माता सीता इन द फिल्म वेयर अ पर्पल साड़ी। उसको लेके भी एक विवाद हुआ कि ये बात सही है। रोहन, आपको मैनी पीपल से दैट इट्स अ ग्रोस it's a डिस्टॉर्शन 95 ऑफ सीता's it's a कैरेक्टर। 95-second teaser. बट डिड शी वेयर अपीयरल्स लाइक दिस? Well, you have to see the film. You have हाँ। to see the film. It's only there are only 3 shots of us, correct? Just see the film. It's only 95 seconds. It's only 95 seconds. तो बाकी में आपको सीता ने क्या लगता है वस्त्र डाले हैं? फिल्म फिल्म देखिए, देखेंगे। फिल्म देखिए। जैसे मैंने कहा, मैं किसी को निराश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि हम माँ सीता है हमारी। हम पवित्रता यहाँ पे रखते हैं उनकी, इधर चरण उनके यहाँ पे। तो पर्पल हो या नहीं हो उससे कोई, आप फिल्म देखिए। 95 सेकंड का टीजर है, अब फिल्म देखें। बिल्कुल फिल्म देखें, या तो फिर नेक्स्ट यूनिट जो आएगा वो देखें। फिल्म की टीजर की बात करूं तो एक ये भी बड़ी क्यूरोसिटी है लोगों को लेके कि फिल्म में गाने किसने गाए, गाने कैसे होंगे, किस पे फिल्माए गए वो गाने। थोड़ा सा कुछ बताइए आप। गाने तो अभी जब रिलीज होंगे तब आप लोग सुन ही Correct. लेंगे। जी, इसके बारे में आज मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि but who are the singers who are part of this journey? we will see. You have to see. Any prominent names that you may want to tell? There are Just the names, a lot of good. such as I will. Ajay Atul has done the music for the film. right. Correct. Ajay Atul जिन्होंने हमारे तानाजी में भी एक गाना किया था, जी, जिन्होंने but would अग्निपथ we और see the मराठी के singers बहुत like बड़े। सोनू निगम और Well, Sonu ji is श्रेया और Rohan, you know a lot. I will not be officially be able to comment on this, Okay. but you should see it. now considering the fact that you spent almost your entire life in Bombay, and where I talked to you about your father's impression inside you, अगर मैं आपकी विजिट की बात करूं फिल्म की रिलीज से पहले, आप अयोध्या में भी गए। मैं अयोध्या जैसी जगह में, जब मैं उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल संपादक था, तो मैं वहाँ जाके महंत से भी मिला और मैंने देखा कि रामलल्ला को कैसे विराजमान किया जाता है। मैंने वो चेहरे देखे, उनके खूबसूरत चेहरे, कि एक छोटा सा रामलल्ला जहाँ पे जन्मभूमि में। आपके लिए वो कितनी संतुष्टि वाली फीलिंग थी जब आप फिल्म की रिलीज से पहले, अभी शायद 3 हफ्ते पहले मुझे लगता है आप लोग गए। मनोज मुंतशी साहब हाँ जी, लिरिसिस्ट, और हाँ जी, आप हाँ जी। और प्रभास भी, और प्रभास थे, कृति थी, भूषण जी थे हमारे प्रोड्यूसर टी सीरीज से। टी सीरीज के, और हम वहाँ पे गए थे। वो कैसी ग्रैंड फीलिंग थी, वो मुझे जरूर बताइएगा। इसके पहले इतना पास जाने का मौका नहीं मिला अयोध्या में। इतना पहले तो एज अ कॉमन मैन गया था, तो बहुत दूर से होता था। पर अब जब जाने का मौका मिला तो एक निर्देशक के इसमें जाने का मौका मिला, और बिल्कुल सामने ले गए, एकदम हमको एकदम सामने लेके गए। और जो हमारी शाम की जो आरती होती है सरयू पे आरती, तो बाद में, उसके पहले जब रामलल्ला के सामने जी, जब वहाँ पे जो हमारी आरती होती है, तो वहाँ पे वो पर्दा हटता है और सामने भगवान के दर्शन होते हैं। क्या बात है। और मुझे एक मौका मिला, इतनी सिक्योरिटी में वहाँ पे कोई किस प्रकार के मोबाइल फोन्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाना अलाउड नहीं है। It's a sacrosanct place. It's not allowed for security reasons also. Correct. पर वहाँ की जो सिक्योरिटी थी, उनको हमारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि हमको हमारी फिल्म की हार्ड ड्राइव उनके पैरों पर रखनी, तो वो हमें मौका मिला। क्या बात तो है, वो हमारे लिए, वो हम मेरी पूरी टीम थी, हम थोड़े ही लोग अंदर पहुंच सकते, बट बाकी सारे लोग वो बैरिकेड के पीछे थे जी। और सब
मतलब तो हार्ड ड्राइव रखी आपने उनके चरणों में? हमको उनके चरणों में रखने का मौका मिला, और वो बहुत बड़ा एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन थी, एक सेटिस्फैक्शन था एज एन आर्टिस्ट कि भगवान राम को अर्पित हम है सब कुछ। हम तेरा तुझको अर्पण, हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और पहले आज थोड़ा एक ये भी होता है कि थोड़ा वीआईपी के तौर पे हमको थोड़ा एक अंदर जाने का मौका मिला, और बहुत समय हम सामने रुक सके। और जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसका तो बहुत सिक्योरिटी थी, बहुत लोग थे, तो हमको फ्रिस्क करके अंदर लेके गए। पर चलते चलते जब देखा बाजू में सब दृश्य जो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये वो, it's going to be massive. It's going to be huge. It is going to be, जिसे कहा जाता है भव्य राम मंदिर, हमारे लिए तो पवित्र भूमि है ना। तो उसमें इतना बड़ा प्रकल्प जो बना रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होने वाली है। और ये हमारा सालों से चलते आया, हम सालों से लड़ रहे हैं, सालों से विनती कर रहे हैं, कब ये प्रूव करें कि भगवान राम वहीं पे पैदा हुए। ये हमारा, आपका, मेरा और सब दर्शकों का, लोगों का, हम सबका ये भाग्य है कि हमारी आयु में कितने सालों से हमारे पूर्वज लड़ते आए हैं जी। ये लड़ाई सालों से चलती आ रही है, और अब जाके वो हमारे बड़े बुजुर्गों की पुण्याई है जो हमारे आयु में आपको और मेरे को ये शायद राम मंदिर हमें देखने को मिले। लेकिन कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी कायाकल्प ही बदल दी है। जिस तरीके से अब सरयू की आरती होती है, गिनीज बुक रिकॉर्ड में आता है कि दिए जलाए जाते हैं घाट में। और अब तो वो दौर है कि जब दिवाली वहाँ पे बनती हुई नजर आती है भगवान राम का, तो वो दृश्य भी आपने जब देखा वहाँ पे सामने की घाट इतने साफ हो गए हैं, राम की नगरी बस रही है सरयू के घाट पे, वो कैसा लगा आपको? बड़ा अद्भुत दृश्य लगा? ये अद्भुत है, यू हैव चोजन द राइट वर्ड, दिस इज मेस्मराइजिंग, दिस इज ब्यूटीफुल। तो पीछे जब आरती चल रही होती है, इट्स सरयू चल रही है, इट्स पावर, द मतलब गूज़बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलना मुश्किल है, क्योंकि समुद्र तो बॉम्बे में भी है, लेकिन नो वेरी डिफरेंट, एक्सट्रीमली डिफरेंट। मैं हर समय कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश मुझे बहुत एक वहाँ की जो मिट्टी की जो एक वो सुगंध आती है, I breathe well in Uttar Pradesh. I personally always feel, and that's also because of the purity that the place brings to and definitely a place like Ayodhya, which is a pure and pious land for all of us. And now when you see that, and when you can see that it's going to come to full glory after a few years, in our lifetime we will actually see it. I think it's a phenomenal achievement by the Honorable Chief Minister and also by Honorable Prime Minister, that to actually give us राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर्स भी हैं, absolutely, प्रधानमंत्री भी और योगी आदित्यनाथ भी। Absolutely, it's a honor for all of us to actually see this in our lifetime. मैं देख रहा था कि आपने यहाँ पे साईं बाबा की फोटो भी रखी है। मैंने सुना कि आपके सेट्स पे गणेश जी को लेके भी बड़ा एक महत्व दिया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? Why do you ensure गणेश जी's presence? So गणपति बाप्पा, हम मराठी में गणेश भगवान, हर शुभ कार्य की शुरुआत जो होती है वो पहले गणराय से होती है। प्रथम तुला वंदितो, सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं और फिर हम कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री का ये एक ट्रेडिशन रहा है कि हम सबसे पहला जो शॉट होता है वो हम गणेश भगवान का लेते हैं और उसके बाद हम बाकी फिल्म की शूटिंग करते हैं। जो फर्स्ट थिंग दैट रोल्स इज ऑलवेज ऑफ गणपति बाप्पा। It's a Mumbai tradition. It's been going on. Film industry basically based out of here, so it's going on. हम उसमें एक थोड़ा एक एक्स्ट्रा ये करते हैं कि हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे पहले शॉट में जितने भी एक्टर्स हों, हमारे सारे एचओडी जो सेट पे हो, वो सब साथ में मिल के हम गणपति बप्पा का ये करते हैं। एक थोड़ा एक माथा टेकते हैं ताकि एक आप साथ रहें, हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे सेट पे जहाँ पे भी हमारा सेट हो, हमारा एक मंदिर होता है और एक छोटा सा मंदिर होता है और हम मंदिर में जाते हैं। कोई हमारा हर एक टेक्नीशियन, हर एक एक्टर जो भी सेट पे जो जा रहा है, पहले
उधर माथा टेक के फिर ही आगे चलते हैं। करेक्ट, तो वो एक हमारे एक ट्रेडिशन है, राइट, वो हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। of course. I would only want to understand your views, your sentiments on the fact that why and why not should a young journalist, a millennial, people of your age, people of ages beyond us, would actually go to the cinemas and watch Adipurush. Compelling reasons क्या रहेंगे इस मूवी को देखने के लिए, हमें इस फिल्म को देखने के लिए? See, we are, I mean, you're a little younger than me, but we're of similar time, and I consider you as a learned man. There is a tremendous awareness of Ramayana, definitely with our generation. Some of the very few Either people because of our generation, recitals of from our grandparents, from grandparents, this and that and everything, several reasons. from one generation From to another. several reasons. अभी पाठ्य पुस्तकों में, अभी एजुकेशन सिस्टम में रामायण का एक पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी हुआ है. It has recently happened. Our education system is improving. Our school education system is improving. बिल्कुल, absolutely. But for that generation also, and also for the generation who's not very aware of Ramayana, Right. this is a 101. Adipurush is a very small introduction of the great teachings of Maryada Purushottam Prabhu Shri Ram. In their grammar, in their language. In their language, in their speaking, in the visuals that they understand. It's a very humble and a very small attempt that we are trying to do. Of course, it's a visual treat. It's made in 3D, so it attracts youngsters, correct? So we want to bring them, show them that, oh hey, you know what, ये है हमारे भारत का इतिहास. This is how. और उसमें जो उसका जो सत्व है, उसका जो अर्क है, उसके पीछे जो सीख है, वो सीख आप लेके जाएं. That is something that I feel that makes it extremely compelling for the youngsters of this country, for the youth of this country, for the children of this country to see this film in its largest form. You talked about my learnings or my academic credentials, but you also went to New York to study films. And would you actually, now that the COVID is almost on a decline, or maybe a bit of it is still remaining in its vestiges, would you like to take this movie even to New York and Certainly. meet your people at Alma Mater and certainly help them know about this subject more? 100%. That's an attempt that we are doing at a very large level. We are trying to Such as? get, well, the Starcast negotiations are happening. No, we're trying for a global release. lovely. We are trying for trying to dub the film in different languages across the world, not just in the US. But we are also trying to take this film globally and release it in as many nations as possible across the world. Negotiations with some people. Conversations are happening, but we have time for release. So by that time we will. But the attempt and the idea, and I'm very sure that we'll be successful, is try to release the film across the world, across several nations, English-speaking nations in English, non-English speaking nations in their languages, and so on and so forth. Maybe sometimes subtitles, but we will try to reach as large as possible. And your family is also very excited, your wife and your parents? Yeah, certainly. I mean, this is something that this subject is close to everybody's. I mean, every film is important, correct? Every film is important for any filmmaker, but this is beyond that for my family, because this is something that we are extremely proud of as a family, and not just my family, every member of my group, Correct. And all of their families, and I believe that entire nation will be one day proud of. Right. Proud of our film. Right, of course. Mr. Raut, it's been brilliant having you on this show. We wish grand success for this movie, and also the fact that you have shown a steely resolve to show the character of Lord Ram on the screen. Of course, controversies apart, the fact is that your heart speaks volumes about the commitment to a certain cause. Rohan, sorry to cut you. I would like to add one small thing, and I kind of said it to you while I was talking, that I'm calling him Raghav. I'm calling her Janki. The reason is it's extremely difficult, which I was actually saying, that it's extremely difficult to even say Prabhu Ram to a character. So we're trying to make a smaller attempt,
And as I said, it's an act of a squirrel, or maybe a smaller part of that, Correct. that we're trying to add to the bigger pie, Right. from me, from my team's side, from everybody's side. Absolutely. No, once again, thank you so much, Sorry. Mr. Raut. We wish you many more visits to your beautiful land, which you talked about, Uttar Pradesh, and of course Ayodhya, before the film's release again. And we'll all be keenly looking forward to this beautiful grand release. Thank you so much for speaking to the New Indian. Thank you so much for having me.